Hello students, how are you? So let's start with today's science class of class 6. So yesterday we have started with methods of separation and we have discussed about separation of the solids from other solid. Like if there is a mixture of two solids, how can we separate the unwanted impurities, in which we have discussed about hand picking method, threshing, winnowing and sieving. Next we will start with separation of insoluble solids from a liquid, or you can say water. If we have a mixture of solid with liquid or water, then how can we separate a insoluble solid? Insoluble means you know that which does not dissolve in water. So these are very important methods. First one is sedimentation and decantation. First let me give you example of a insoluble solid mixed in water. For example, a mixture of sand and water. तो हमने लास्ट चैप्टर में भी देखा था, मैंने आपको सैंड और वाटर का मिक्सचर दिखाया था कि whenever we mix sand with water, the sand does not dissolve in water because it is a insoluble solid. So if there is a mixture which has a insoluble solid in water, how can we separate the solid from the liquid? So first method is, or first step you can say, is sedimentation. Sedimentation is what? A process of settling down of heavier insoluble particles at the bottom of a liquid is called sedimentation. If we have this mixture of sand and water, and here we can see that the sand and water is not completely mixed, but if you will try to make a mixture, they will mix for a while. Then what you have to do, you have to keep this mixture for some time without disturbing it. मतलब आपने क्या करना है कि सैंड और वाटर का एक मिक्सचर बनाना है, उसको अच्छे से मिक्स कर देना है जितना वो हो सकता है. उसके बाद आपने क्या करना है, उसको थोड़ी देर के लिए रख देना है, ठीक है, और उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, बिल्कुल भी हिलाना नहीं है, ठीक है. आफ्टर दैट यू विल फाइंड दैट द सैंड विल बी सेटल्ड एट द बॉटम एंड वाटर विल बी कलेक्टेड ऑन द अपर साइड. And this process of settling down of heavier insoluble particles at the bottom of the liquid is called sedimentation, because here we have sand. तो sand जो होती है वो water से heavy होती है. तो जब हम इस mixture को थोड़ी देर के लिए रख देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे sand जो है वो bottom पे इकट्ठी हो जाएगी क्योंकि वो water से heavy है. इस वजह से जो water है वो ऊपर रह जाएगा और sand नीचे इकट्ठी हो जाएगी. So this is the process of sedimentation. So we will get a clear water upper and sand. The sediment or the sand which is collected at the bottom is called sediment. Means जो भी हमने mixture बनाया है उसको जब हम रखते हैं तो जो भी heavier particles नीचे बैठ जाते हैं bottom पे, उनको हम क्या बोलते हैं, sediment. Okay, so this is the sedimentation process. But till now it is not completely separated. अभी water और sand की एक अलग layer बन गई है, लेकिन अभी भी वो separate नहीं हुए हैं. Means उनको हम different container में जब तक नहीं डालेंगे तब तक वो separate consider नहीं होंगे, ठीक है. After sedimentation, to separate these two mixture to these two components, water को अलग करना है हमें, अब sand को अलग करना है. उसके लिए हम क्या करेंगे, decantation. Decantation is the process of pouring of clear liquid from a vessel after sedimentation without disturbing the sediment is called decantation. Means हमने क्या करना है, sedimentation के बाद जो हमें ये layers मिलेंगी liquid, water और sand की, उनको हमने separate करना है, ठीक है. उसके लिए हम क्या करते हैं, clear water को अलग vessel में ट्रांसफ़र करते हैं या pour करते हैं, ठीक है. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, decantation. मीन्स आप क्या कर सकते हैं कि जब वाटर के ऊपर लेयर बन जाती है और जब आप उसको सेपरेट करने की कोशिश करते हैं तो कई बार क्या होता है कि सैंड के पार्टिकल्स वाटर में आ सकते हैं. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक ग्लास रोड का यूज़ करते हैं, ठीक है. ग्लास रोड कैसी होती है, एक बिल्कुल इस तरह से सिलेंड्रिकल शेप का स्ट्रक्चर होती है, ग्लास की बनी हुई होती है, लेबोरेटरी में आपको ईजिली मिल जाएगी. तो आपने क्या करना है, ये वाला जो बीकर था जिसमें हमारे पास वाटर और सैंड का सेपरेटेड मिक्सचर था, उसको हमने पोर करना है
इस ग्लास रोड के ऊपर। मीन्स जब आप वाटर पोर करेंगे तो आप ग्लास रोड के ऊपर ही वाटर को डालेंगे और बहुत ध्यान से आपको ये करना पड़ेगा, अदरवाइज द सैंड पार्टिकल्स कैन कम अलॉन्ग विद द वाटर। ठीक है, तो ये आप जैसे ही वाटर इसमें ऐड करेंगे देन इट विल पोर अलॉन्ग द ग्लास रोड एंड इट विल कम्प्लीटली एंटर्स इनटू द अदर वेसल। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको पोर करना है, बट ओवर विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास रोड सो दैट द टू कैन नॉट बी मिक्सड. So we will get the clear water here and the sand will remain in the first vessel where we were having the separated layer of water and sand. ठीक है, तो this process is called decantation. So is it clear? But the water that we get is clear water and the sand that is left is the sediment, or you can say the waste which we get after decantation. So let's see the next process of separation. So let's see the next process of or method of separation of insoluble solid from a liquid. Next process is called loading. Loading is somewhat you can say similar to sedimentation, but it is actually used to increase the rate of sedimentation. Why? Where loading is being used? In case of muddy water. As you know, muddy water, how does muddy water is formed? Because like sometimes when it rains, the rivers or pond water it gets mixed with very fine clay particles. होते हैं ना, बिल्कुल पतली वाली जो बारीक मिट्टी होती है वो उसमें मिक्स हो जाती है रिवर या पॉन्ड वाटर में. ठीक है, बट जो क्ले पार्टिकल्स होते हैं वो इतने स्मॉल होते हैं कि उनके लिए अगर हम सेडिमेंटेशन प्रोसेस को फॉलो करें तो बहुत टाइम लगेगा उनको सेटल होने में, नीचे बैठने में, क्योंकि वो बहुत लाइट होते हैं बट वाटर से हैवी होते हैं, लेकिन वो बहुत छोटे छोटे होने की वजह से उनको बहुत टाइम लगता है सेडिमेंटेशन करवाने में. ठीक है, तो अगर हमारे पास मडी वाटर है और हमें उन दोनों को सेपरेट करना है, उसमें से क्ले या सैंड को वाटर से अलग करना है, तो हम लोडिंग का यूज़ करेंगे. ठीक है, लोडिंग में हम क्या करते हैं, कोई भी केमिकल लेते हैं और उसको मडी वाटर में इस तरह से रोटेट कर देते हैं. ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने आपको दिखाया है, इट इज़ अ मडी वाटर मिक्सचर ऑफ क्ले पार्टिकल्स एंड वाटर. जब आप इसमें एलम क्या होता है, केमिकल होता है. जैसे घर में देखा आपने कई बार यूज़ करते हैं, वाइट से कलर का एक होता है केमिकल सा, एक स्टोन के जैसा, और उसको हम क्या करते हैं, थ्रेड से टाई करके उस वाटर में मूव डाल देते हैं और उसको पूरी तरह से उस वाटर के अंदर रोटेट कर देते हैं. ठीक है, देन आफ्टर सम टाइम यू विल सी दैट the clay particles will settle at the bottom and clear water will be left over the upper part of the beaker. ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ, कैसे इसने वर्क किया? जैसे हमने उसमें एलम डाला, एलम जो होता है वो वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है, वो पानी में जाते ही घुल जाता है. ठीक है, तो एलम के जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो क्ले पार्टिकल्स के साथ स्टिक कर जाते हैं. ठीक है, जिससे क्या होता है, क्ले पार्टिकल्स हैवी हो जाते हैं और वो नीचे बैठ जाते हैं. ठीक है, so in this way the alum will work to separate the clay particles from water. So here you can see the clay will be settled at the bottom, it is loaded with alum and clear water will be collected over the top. Why we have written here it is loaded with alum? Because clay particles they get stick to the alum particles to make them heavy. That is why they will easily settled at the bottom. इसमें प्रोसेस वही हो रही है सेडिमेंटेशन, लेकिन हमने यहाँ पे लोडिंग के थ्रू करवाया है, क्योंकि यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत लाइट वेटेड है और उनको सेपरेट करना बहुत डिफ़िकल्ट है, टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए हमने उसके ऊपर एक लोड डाल दिया किसका, एलम का. ठीक है, सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ लोडिंग फॉर सेपरेशन ऑफ इनसोल्यूबल सॉलिड फ्रॉम अ लिक्विड. सो लेट्स सी द नेक्स्ट मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ insoluble solids from a liquid. Okay, next method is called filtration. It is also very much important method. The process of separating the insoluble substances from a liquid using a filter paper is called filtration. So it is as other methods, it is also a method for separation of insoluble solids from liquid, but we are using here filter or filter paper. मीन्स कोई भी हम ऐसी चीज़ यूज़ कर रहे हैं जो फिल्टर का वर्क कर रही है, जो कि एक इनसोल्यूबल सॉलिड को लिक्विड से सेपरेट करने में हेल्प कर रही है. फॉर एग्जांपल, अ वेरी कॉमन एग्जांपल, जैसे आप घर पे चाय बनाते हैं. ठीक है, व्हाट डू वी यूज़ इन मेकिंग टी? वी ऐड टी लीव्स, वाटर, मिल्क, शुगर एंड देन वी प्रिपेयर टी.
After preparing tea, what do? You just sieve it, you just strain it with a tea strainer. उसको आप छलनी से छानते हैं. क्यों छानते हैं? क्योंकि उसके अंदर जो छोटे छोटे लीव्स, टी लीव्स होते हैं, चाय की जो पत्ती होती है, उसको आपको सेपरेट करना होता है. ठीक है, बिकॉज वी कैन नॉट टेक टी अलॉन्ग विद द टी लीव्स. ठीक है, तो दैट इज अ प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन बिकॉज वी आर यूजिंग हेयर अ फिल्टर विच इज अ टी स्ट्रेनर. ठीक है, जो आप चाय की छलनी होती है वो एक फिल्टर की तरह वर्क कर रही है यहाँ पे. तो ये जो है इट इज ऑल्सो अ प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन. नेक्स्ट इज सेपरेशन ऑफ मड फ्रॉम मडी वाटर. लाइक यू नो इन केस ऑफ टी लीव्स, जब टी लीव्स की हम बात करते हैं तो टी लीव्स का साइज थोड़ा बड़ा होता है. जब हम उसको छलनी में से छान लेते हैं तो इजीली टी लीव्स दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द टी. बट इफ वी टॉक अबाउट मडी वाटर, हमने जैसे मडी वाटर को डिकेंटेशन और सेडिमेंटेशन से भी सेपरेट किया था, लेकिन फिल्ट्रेशन से हमें और ज़्यादा क्लियर वाटर मिल जाता है. जैसे आपको याद है कि सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन में हमने क्या किया था, पहले हमने मडी वाटर को थोड़ी देर रखा था या हमने एलम का भी यूज़ किया था. तो उसमें हमें क्या मिल रहा था कि जो सेडिमेंट है, जो सैंड पार्टिकल्स हैं, जो क्ले पार्टिकल्स हैं, मड है, वो नीचे बैठ रही है और क्लियर लिक्विड ऊपर आ रहा है. लेकिन वी हैव आफ्टर सेपरेटिंग इट बाय डिकेंटेशन मेथड, इवन सम पार्टिकल्स ऑफ क्ले और सैंड कैन एंटर्स इनटू द वाटर. जब आप उसको डिकेंटेशन करते हैं तो उस टाइम पे भी थोड़े बहुत पार्टिकल्स उसमें चले जाते हैं. तो दैट लिक्विड कैन नॉट बी यूज फॉर सम अदर पर्पज लाइक ड्रिंकिंग. अगर हमने डिकेंटेशन कर दिया तो मडी वाटर को हम ड्रिंकिंग के लिए यूज नहीं कर सकते, उसमें स्टिल सम इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं. ठीक है, सो वी विल गो फॉर फिल्ट्रेशन मैथड. Okay, so filtration method, there is an activity given in your book, activity 4, in which we have done filtration of muddy water with the help of a filter paper. Now what is a filter paper? I will show you one video also, then you will be more clear. लैब में हमारे पास फिल्टर पेपर अवेलेबल है. आई विल शो यू व्हेन द स्कूल्स विल बी ओपन. सो फिल्टर पेपर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पेपर हैविंग मिलियंस ऑफ टाइनी होल्स इन इट. ओके, तो जो नॉर्मल पेपर होता है वो भी, उसके अंदर भी होल्स होते हैं छोटे छोटे, बट बहुत ज़्यादा टाइनी स्मॉल होल्स नहीं होते हैं. बट जो फिल्टर पेपर होता है उसके अंदर जो होल्स होते हैं दे हैव वेरी वेरी स्मॉल टाइनी होल्स. ठीक है, तो उसमें से हम क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन के लिए उसको यूज़ करते हैं. मीन्स इतने छोटे होल्स होते हैं कि आप उसको देख नहीं सकते हो. नॉर्मली जब आप फिल्टर पेपर देखोगे तो आपको कोई होल्स दिखाई नहीं देंगे, लेकिन जब आप उसको जैसे माइक्रोस्कोप वगैरह में देखेंगे देन यू विल बी एबल टू सी द होल्स. ठीक है, तो फिल्टर पेपर एक स्पेशल टाइप का पेपर है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे होल्स होते हैं. ठीक है, नाउ हाउ डू वी यूज फिल्टर पेपर फॉर फिल्ट्रेशन? लेट्स सी. दिस इज अ फिल्टर पेपर. फिल्टर पेपर हमेशा एक सर्कुलर शेप में आता है मार्केट में. ठीक है, सो दिस इज अ फिल्टर पेपर. फर्स्ट वी विल फोल्ड द फिल्टर पेपर इन हाफ. ठीक है, तो सर्कुलर शेप का फिल्टर पेपर है, उसको हम फोल्ड करेंगे हाफ में. Then we will again fold it to give it a shape like this. ठीक है, सेकेंड टाइम फोल्ड करना है. फिर उसको हमने इस तरह से जब हम सीधा उल्टा करके देखेंगे then it will have a shape like a cone. So this is called a filter paper cone. क्योंकि आपको डायरेक्टली यूज नहीं करना है, फिल्टर पेपर को फोल्ड 2 टाइम्स फोल्ड करके फिर उसका एक कोन बना लेना है. Then we will be using it for filtration. Clear? Now how this filtration is being done? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मडी वाटर को लेना है और उसको लोडिंग या सेडिमेंटेशन से वाटर और लिक्विड को सेपरेट कर लेना है. ठीक है, आफ्टर दैट व्हाट वी विल डू, इससे क्या होगा कि फिल्ट्रेशन और अच्छे से हो जाएगी क्योंकि बहुत सारे सैंड पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएंगे. ठीक है, तो जो ऊपर की जो क्लियर लिक्विड की लेयर है उसमें बहुत कम पार्टिकल्स रह जाएंगे. ओके, सो व्हाट वी विल डू, दिस इज द बीकर इन विच वी हैव ऑलरेडी डन दैट sedimentation. Okay, so what we will do, we will set up an apparatus in the laboratory where we will take a beaker at the bottom and it is a funnel. इस तरह के एक ग्लास फनल आता है, लैब में आपको दिखाऊंगी मैं. तो ये जो फनल होता है उसके अंदर हमने इसको कोन शेप का स्ट्रक्चर इसीलिए दिया था कि इसका और इसका शेप दोनों का सेम होता है. तो हमने ये फनल लिया एंड देन वी कीप द फिल्टर पेपर इन द फनल. तो हमने इस तरह से कोन बना के फिल्टर पेपर को फनल के अंदर रख दिया. देन व्हाट वी विल डू, वी विल स्टार्ट पोरिंग द वाटर. और उसी तरह से एक ग्लास रोड लेंगे जैसे हमने पहले ली थी डिकेंटेशन के टाइम. ये भी एक टाइप का डिकेंटेशन ही है, बट व्हाट वी आर डूइंग हियर, वी आर फिल्टरिंग विद द फिल्टर पेपर. वी आर नॉट डायरेक्टली पोरिंग द लिक्विड. ओके, तो यहाँ पे भी हम डिकेंटेशन कर रहे हैं बट विद द हेल्प ऑफ अ फिल्टर पेपर. सो दिस स्टेप्स बोथ
कैन बी कंसिडर्ड इन दिस डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन. तो यहाँ पे दोनों चीजें हो गई. ठीक है, क्लियर है. सो व्हाट वी विल डू, वी विल pour the liquid along the glass rod so that the water will be only the water portion will come out. Okay, so the water, as the water will pass through the filter paper, then the sand particles which are mixed in the water, they will be collected at the bottom. तो उस sand में से water जो है filter हो के जाएगा and this will be the filter paper through which the water will be filtered out. Now the sand which is collected at the bottom is the, it is an insoluble mud and it is also called as residue. तो जो वेस्ट या जो एक्स्ट्रा सैंड पार्टिकल्स जो कि फनल में इकट्ठे हो जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रेजिड्यू. और यहाँ पे हमें जो लिक्विड मिलता है दैट इज अ कम्प्लीटली क्लियर लिक्विड एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फिल्ट्रेट. तो इसको हम क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट. इज इट क्लियर? सो फर्स्ट वी विल ट्राई टू डू सेडिमेंटेशन. दिस विल हेल्प अस टू मेक द लिक्विड मोर क्लियर. Then we will pour the liquid in the funnel and the residue or the mud which will be collected here is called as residue, and the water or clear liquid will be coming out in this beaker, is collected in this beaker. It is called as filtrate. So this process is called filtration because here we are using filter paper for filtration. So is it clear? So let's see the next the uses of filtration. कि filtration को अगर हम रूटीन लाइफ की बात करें तो कहाँ कहाँ पे हम इसको यूज करते हैं. Let's see now. So let's now see the uses of filtration in everyday life. So filtration, as you know, it is a process of separating the solid from the liquid. For example, fruit juices. फ्रूट जूसेस जो होते हैं, कैंड जूसेस या नॉर्मल फ्रेश जूसेस या वेजिटेबल जूस अगर हम बनाते हैं, वेजिटेबल सूप, these things are used, they use filtration method to separate the seeds and pulp. तो नॉर्मली भी जब आप घर पे किसी भी फ्रूट का जूस बनाते हैं, लाइक से वाटरमेलन का आप जूस बना रहे हैं, तो इट हैज सीड्स इन इट, इट हैज पल्प इन इट. सो फर्स्ट यू विल crush the pulp and then you will strain it with the help of a strainer. That is also a method of filtration. Okay. नेक्स्ट इज टू फिल्टर पनीर प्रिपेयर्ड एट होम. तो नॉर्मली जैसे घर पे हम जो चीज़ पनीर बनाते हैं, what do? We just use the boiled milk and boiling milk and then we squeeze lemon or add vinegar in the milk and then we will get the paneer. So after making it, we have paneer along with the extra waste liquid in it. Okay. So to separate the cheese or paneer from that liquid, we just filter it by straining it from the strainer. उसको आप छलनी से छान देते हैं. तो that is also a filtration process जो हम घर में normally use करते हैं. Next is very important, that is water filtration. Water filtration, all of us has filters at our homes. तो लाइक फिल्टर सिस्टम जो है वो डिफरेंट टाइप के आते हैं. अब बहुत सारे अवेलेबल हो गए हैं. मोस्ट कॉमन जो है वो आरओ सिस्टम है, सबके घर पे होता है आरओ. और इलेक्ट्रिक अल्ट्रा वायलेट वाटर फिल्टर भी आ गया है अब. तो ये जो फिल्ट्रेशन फिल्टर्स होते हैं, दे ऑल्सो वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वाटर ऑन दिस फिल्ट्रेशन प्रोसेस. जैसे आरओ है हमारा, उसके अंदर एक मेम्ब्रेन होती है विच हैज़ वेरी टाइनी होल्स, सो दैट व्हेन द वाटर विल पास थ्रू दैट मेम्ब्रेन, the waste particle or impurities which are present in the water will be filtered out through the water. Okay, so these are the most. and ultraviolet filter जो होते हैं उसमें भी क्या होता है कि filtration होने के बाद, water की filtration होने के बाद उसको ultraviolet rays से भी पास किया जाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फिल्टर्स होते हैं. तो ये ultraviolet rays से भी इनको पास किया जाता है, जिसकी वजह से अगर कोई भी छोटा सा भी बैक्टीरिया, अगर थोड़े बहुत बैक्टीरिया वाटर के अंदर रह गए हैं, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाटर में रह गया है, तो वो भी किल हो जाएगा. ठीक है. सो दीज आर मोर एडवांस्ड टाइप ऑफ वाटर फिल्टर्स. इन दिस ओनली द फिल्ट्रेशन विल टेक्स प्लेस, बट किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विल नॉट टेक्स प्लेस, बट हियर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विल ऑल्सो बी किल्ड ड्यू टू द अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस प्रोवाइडेड बाय द फिल्टर. So this is all about uses of filtration in daily life. So with this we are done with the separation of insoluble liquids, solids from a liquid. Next we will take up with the next topic. So the next method of separation of the next method is separation of soluble solids from a liquid. In the previous methods we have studied about the separation of insoluble solids, जो solids water में mix नहीं होते हैं.
लेकिन ये वो सॉलिड्स हैं जो वाटर में मिक्स हो जाते हैं, लाइक डू यू रिमेंबर, यस, सॉल्ट सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन, तो ये चीज़ें वाटर में डिजोल्व हो जाती हैं। तो कैन यू इमेजिन कि एक बार जब हम सॉल्ट को वाटर में मिक्स कर देते हैं तो सॉल्ट पूरी तरह डिजोल्व हो जाता है, तो हम उस सॉल्ट को फिर से भी रिकवर कर सकते हैं बाय विच प्रोसेस, इवेपोरेशन। So separation of soluble solids from liquid is done by evaporation. Evaporation is, all of you know that, the process of converting the liquid into vapors on heating. हीट करके जब हम लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसको हम इवेपोरेशन बोलते हैं। नॉर्मली आपने इवेपोरेशन कहाँ पे देखा है, जैसे मान लो अगर आप वाटर को बॉईल कर रहे हो गैस पे रख के, ठीक है, और आप उसके ऊपर एक प्लेट कवर कर देते हो। After some time when you will remove that plate, you will find some droplets of water over the plate. उसके नीचे की साइड वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। तो वो क्यों होता है, क्योंकि जब वाटर बॉईल करते हैं तो वो इवेपोरेट होता है, ठीक है, वेपर्स में कन्वर्ट होता है, और वो वेपर्स फिर से प्लेट के ऊपर जाके टकरा के वो वाटर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। नाउ एंड इट इज बेसिकली यूज्ड फॉर सेपरेटिंग कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम एक एक्टिविटी डिस्कस करेंगे, एक्टिविटी 5 गिवन इन योर बुक। व्हाट वी हैव डन, वी हैव फर्स्ट प्रिपेयर्ड अ सॉल्ट सॉल्यूशन। उसमें हमने क्या किया, सॉल्ट सॉल्यूशन में 2 टेबलस्पून सॉल्ट हमने लिया और उसको 50 ml वाटर में मिक्स करके एक सॉल्ट सॉल्यूशन बना लिया, ठीक है, ये आप घर पे भी करके देख सकते हो। व्हाट वी विल डू, वी विल टेक अ चाइना डिश और उसके अंदर हम इस सॉल्ट सॉल्यूशन को डाल देंगे। देन वी विल हीट इट ओवर द बर्नर, ठीक है, उसको हम हीट फ्लेम के ऊपर बर्न करेंगे। देन यू हैव टू कंटिन्यूस हीट इट। देन आफ्टर सम टाइम यू विल फाइंड दैट द वाटर विल स्टार्ट इवेपोरेटिंग फ्रॉम इट, एंड ऑन कंटिन्यूस हीटिंग आपने उसको तब तक हीट करना है जब तक कि उसका पूरा का सारा वाटर इवेपोरेट नहीं हो जाता, ठीक है। आफ्टर सम टाइम यू विल फाइंड दिस दैट the water will be evaporated, only the salt will be left in the china dish। या नॉर्मली घर पे भी जैसे कोई भी एक पैन लेके उसमें वाटर और सॉल्ट सॉल्यूशन डालिए और उसको तब तक हीट करते रहिए जब तक उसका वाटर सारा इवेपोरेट नहीं हो जाता और नीचे आपको वाइट वाइट सा सॉलिड जो है सॉल्ट की फॉर्म में आप जो है वो दिखाई देगा, ठीक है। दैट इज व्हाट एन इवेपोरेशन प्रोसेस, एंड द कॉमन सॉल्ट विल बी लेफ्ट बिहाइंड बिकॉज सारा का सारा वाटर जो है वो इवेपोरेट हो गया, ठीक है। और इस मेथड को जनरली हम यूज करते हैं टू get the common salt or salt from sea water. Do you know from where the salt comes that we eat daily? means generally हम जो salt use करते हैं regular basis पे वो कहाँ से आता है सारा salt? Yes, it comes from sea water. Sea water में जो sea water को क्या करते हैं, sea से water लेते हैं और उसके आसपास के जो areas होते हैं वहाँ पे एक बड़े बड़े इस तरह से गड्ढे बनाए होते हैं जिनको लगून्स बोलते हैं, ठीक है। तो बड़े बड़े पॉन्ड्स टाइप जो होते हैं, बड़े बड़े गड्ढे होते हैं, डीप लगून्स, वेयर दिस सी वाटर इज केप्ट, ठीक है, और उन गड्ढों को हम सी वाटर से फिल कर देते हैं और वो काफ़ी ब्रॉड होते हैं सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा पानी स्प्रेड हो सके, ठीक है। देन वी विल कीप इट फॉर सम डेज इन द सन। तो जो जैसे ही उसके ऊपर सनलाइट पड़ेगी, सनरेज पड़ेंगी, तो वाटर विल इवेपोरेट बाय ऑटोमेटिकली बाय इटसेल्फ बाय नेचुरल मेथड। तो धीरे धीरे सनरेज से सारा वाटर इवेपोरेट हो जाएगा और उसमें जो नीचे हमारे पास क्या बच जाएगा, सॉल्ट। बट दैट सॉल्ट इज नॉट प्यूरिफाइड, उसके अंदर और भी बहुत से अनवांटेड इम्प्योरिटीज होती हैं जो कि हम यूज नहीं कर सकते। देन दैट सॉल्ट इज कलेक्टेड एंड देन प्यूरिफाइड एंड देन मार्केटेड, ओके। तो जो हमारे पास सॉल्ट आता है वो आफ्टर प्यूरिफिकेशन के बाद हमें वो सॉल्ट मिलता है। तो दिस मेथड इज यूज टू सेपरेट द soluble solids from the liquids, or you can also do it with the this sugar solution। शुगर और वाटर के मिक्सचर को भी आप सेम इसी प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं। हमने क्या करना है, वही शुगर सॉल्यूशन बनाया, उसको हीट किया, वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, शुगर रह जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ऑफ soluble solid फ्रॉम द लिक्विड। लेट्स टेक अप विद द नेक्स्ट पार्ट। So next is separation of liquids from a mixture of solid and liquid. As we have discussed about separation of solids from a mixture of solid and liquid, बट यहाँ पे हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि सॉलिड को तो हम सेपरेट कर सकते हैं, जैसे हमने सॉल्ट को किया या सैंड को किया, उसी तरह से हम लिक्विड को कैसे सेपरेट करें अगर एक सोल्यूबल मिक्सचर है सॉलिड और वाटर का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट सोल्यूशन, तो
So salt solution is the most common type where we are studying this salt solution, in which we have a mixture of salt and water. तो इस मेथड, इसके लिए जो मेथड यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन. कंडेंसेशन इज व्हाट? जस्ट अपोजिट टू इवेपोरेशन. तो कंडेंसेशन में क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर्स इनटू लिक्विड ऑन कूलिंग. इवेपोरेशन में क्या हो रहा था? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर्स ऑन हीटिंग. वहाँ पे हम हीटिंग कर रहे थे जिससे लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा था, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? कूलिंग कर रहे हैं जिससे लिक्विड जो है वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो रहा है. ठीक है, तो हम इसमें एक एक्टिविटी करेंगे, एक्टिविटी 6 गिवन इन योर बुक, टू सेपरेट वाटर फ्रॉम सॉल्ट सॉल्यूशन. पहले हमने क्या किया था? इवेपोरेशन से सॉल्ट को सेपरेट किया था, वाटर को इवेपोरेट करके. अब हम क्या करेंगे? वाटर को सेपरेट करेंगे सॉल्ट और वाटर का कंडेंसेशन करवा के. ठीक है, तो इसमें एक्चुअली हम इवेपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों को यूज कर रहे हैं. कैसे? We have taken a kettle in which we have taken a salt solution, और इसको हमने एक स्टैंड के ऊपर इस तरह से सेटअप लगा दिया. then we will heat it with the help of a Bunsen burner. तो इसको हम फ्लेम से हीट करेंगे. when it will start heating, we are using kettle here because the steam will comes out in a you can say स्पेसिफिक वे. जैसे कि यहाँ पे क्या होगा? एक कलेक्टेड स्टीम जो है वो एक ही डायरेक्शन से आएगी. अगर आप यहाँ पे बीकर यूज करेंगे तो क्या होगा? स्टीम जो है वो सभी डायरेक्शन से बाहर आएगी, तो वो वाटर जो है वो पूरी तरह से इवेपोरेट होके एनवायरमेंट में, एयर में चला जाएगा. बट हेयर वी वांट टू कलेक्ट द इवेपोरेटेड वाटर, दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग केटल हेयर. तो हमने क्या किया? केटल में सॉल्यूशन ले लिया और उसको हीट किया. आफ्टर हीटिंग इट, then the steam will start coming out. Steam will be formed due to conversion of water droplets, the liquid, the water into vapors. evaporation की वजह से steam बनेगी, और steam के बनने से क्या होगा? फिर हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक पैन लेंगे. ये एक पैन है, और हमने पैन की बैक साइड को जहाँ से स्टीम आ रही है वहाँ पे रख दिया. ठीक है, थोड़ा इससे दूर रखना है आपको, बिल्कुल उसके ऊपर नहीं रखना है. then what will happen? The steam which is coming will स्ट्राइक विद द पैन. तो जैसे वो पैन के साथ स्ट्राइक करेगी तो उसको थोड़ा ठंडा होने का टाइम मिल जाएगा. जैसे वो एयर में आएगी, वाटर जो है स्टीम या वाटर वेपर्स एयर में आते ही, अगर वो सीधा एयर में चले जाएंगे तो वो ऊपर चले जाएंगे हाई एटमॉस्फेयर में. बट वी आर कलेक्टिंग इट ओवर द बैक साइड ऑफ द पैन, बॉटम ऑफ द पैन. तो जैसे ही वो इसके साथ स्ट्राइक करेंगे, क्या होगा? इनको थोड़ा कूलिंग इफेक्ट मिलेगा, ठंडा होने का टाइम मिलेगा. कूलिंग की वजह से क्या होगा? ये वाटर वेपर सारे इकट्ठे हो जाएंगे, और इकट्ठे होने से ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? वाटर ड्रॉपलेट्स में. और फिर वो वाटर ड्रॉपलेट्स क्या करेंगे? हम बीकर में कलेक्ट कर लेंगे. दिस विल बी द वाटर. नॉर्मली जैसे हम घर पे क्या करते हैं, जब भी वाटर बॉईल करते हैं उसको अगर हम किसी प्लेट से कवर कर देते हैं, और आप जब उस प्लेट को उठाते हैं तो उसमें आ जाते हैं ना वाटर ड्रॉपलेट्स. तो वहाँ पे कंडेंसेशन ही होती है. जो स्टीम विच इज कमिंग फ्रॉम द वाटर, इट विल स्ट्राइक विद द बॉटम ऑफ द प्लेट, and it will cause the cooling and will cause the condensation by converting the vapors into liquid droplets. और ये liquid droplets फिर हम इसको एक beaker में कलेक्ट कर लेंगे. that will be called as the condensation process. और यहाँ पे क्या है? salt kettle में रह जाएगा और beaker के अंदर जो है हमें water मिल जाएगा. ठीक है, so this is the separation of liquids from a mixture of solid and liquid. So let's see the next method of separation, that is separation of liquid from a mixture. Means, as we have already discussed about the separation of solids from a mixture, now we will study the separation of liquid from a mixture. As we know that if we talk about a mixture having two liquids, so there are two types of liquids depending upon they are soluble in the water or not. We have discussed in previous chapter. तो दो तरह के लिक्विड्स होते हैं, एक होते हैं मिक्सिबल और एक होते हैं इमिक्सिबल. मिक्सिबल कौन से होते हैं? जो कि वाटर में पूरी तरह मिक्स हो जाते हैं, और इमिक्सिबल जो वाटर में मिक्स नहीं होते हैं. ठीक है, तो मिक्सिबल का एग्जांपल है वाटर प्लस अल्कोहल. यू नो दैट अल्कोहल इज द लिक्विड विच मिक्सेस इन वाटर कम्प्लीटली, डिजॉल्व इन वाटर कम्प्लीटली. तो जब हम अल्कोहल और वाटर को कम्प्लीटली मिक्स कर देते हैं तो वो एक कंप्लीट सॉल्यूशन बना देते हैं. ठीक है, तो उसको सेपरेट करने के लिए हमारे पास एक मेथड है जिसको हम बोलते हैं डिस्टिलेशन. ठीक है,
तो डिस्टिलेशन जो है इसमें हम क्या करते हैं कि एक डिस्टिलेशन फ्लास्क होता है ऐसे राउंडेड शेप का, और उसमें हम इस सॉल्यूशन को डाल देते हैं जो वाटर और अल्कोहल से बना है, ठीक है। उसके बाद हम उसको डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे हीट करते हैं, ठीक है। और बेसिकली हम इसमें क्या करते हैं कि हीटिंग करने से जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है सभी लिक्विड्स का जिसपे वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे ही किसी भी लिक्विड का अपना टेम्परेचर आ जाएगा वेपर में कन्वर्ट होने का, वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर उस वेपर्स को हम कंडेंस कर लेंगे और उसको लिक्विड में कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, ये आपके हायर क्लासेस में 9th 10th वगैरह में पूरा डिटेल में आएगा, बट स्टिल यू शुड नो द नेम दैट द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग टू मिसिबल लिक्विड्स इज डन बाय डिस्टिलेशन। और इसमें जो फ्लास्क यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं डिस्टिलेशन फ्लास्क। फ्लास्क क्या होता है कि जो हम लेबोरेटरी में चीज़ें यूज करते हैं ना, जैसे बीकर्स होते हैं, टेस्ट ट्यूब्स होती हैं, ये सब आपने देखा होगा, उसी तरह से एक डिस्टिलेशन फ्लास्क होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज इमिसिबल लिक्विड्स व्हेन द लिक्विड इज नॉट मिक्स्ड विद वाटर। तो इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है ऑयल। लाइक एग्जांपल इज वाटर प्लस केरोसिन ऑयल। व्हेन वी मिक्स ऑयल विद वाटर then a separate layers will be formed. Water will be setting at the bottom and oil will be collected at the top. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि water जो होता है वो oil से heavy होता है, तो oil ऊपर रह जाएगा, lighter होता है, और जो वाटर है वो नीचे एक लेयर फॉर्म कर लेगा, ठीक है। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? सॉल्यूशन की, जिसमें हमने उसको कम्प्लीटली मिक्स किया हुआ है कि थोड़ा बहुत ऑयल जो है वो वाटर के अंदर भी प्रेजेंट है। तो उसको हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं? उसके लिए एक टेक्निक होती है विच इज कॉल्ड सेपरेटिंग फनल मेथड, ठीक है। सेपरेटिंग फनल मेथड क्या होता है? जैसे मैंने आपको पहले बताया था, फिल्ट्रेशन में एक फनल होता है जो कि कोन शेप का होता है, ठीक है। उसी तरह से एक स्पेशल टाइप का फनल होता है जिसको हम बोलते हैं सेपरेटिंग फनल। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड सेपरेटिंग फनल। नाउ दिस सेपरेटिंग फनल विल बी यू कैन से सेट अप with this stand। तो इस तरह से हम स्टैंड पे इसको सेट कर लेंगे, और नीचे हमने एक बीकर रख दिया है, और इस तरह से इस फनल के लास्ट में एक ट्यूब लाइक थिंग होती है जिससे ये वाटर जो है वो सेपरेट हो जाता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देन वी विल पुट द केरोसिन एंड द सॉल्यूशन। यहाँ से हम सॉल्यूशन जो है वो ऑयल और वाटर का इसके अंदर डाल देंगे, एंड देन वी विल कीप इट फॉर सम टाइम, ओके। देन आफ्टर सम टाइम यू विल फाइंड दैट the kerosene oil being lighter, it will be collected at the upper portion, and water being heavier will be collected at the bottom। अब आप सोचेंगे कि ये चीज़ तो हम नॉर्मल फ्लास्क में या नॉर्मल बीकर में भी कर सकते थे, लेकिन फिर हम उसको सेपरेट कैसे करते? अगर आप ऑयल को निकालने की कोशिश करोगे तो वाटर भी साथ में आएगा, है ना। इसीलिए हमने सेपरेटिंग फनल को यूज़ किया, विच इज़ अ वेरी गुड फनल। वाई? बिकॉज यहाँ पे इसके क्या होता है, किस तरह से कॉक लगा होता है। कॉक क्या होता है? जैसे टैप होती है ना घर में, जब आप उस टैप को ओपन करते हो तो वाटर आता है, वैसे ही यहाँ पे एक टैप के जैसे कॉक लगा होता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? स्टॉप कॉक। तो ये बिल्कुल टैप के जैसे होता है, ओके। देन आफ्टर द सेपरेशन ऑफ केरोसिन ऑयल एंड वाटर, वाटर जो है वो नीचे बैठेगा क्योंकि वाटर हैवियर होता है, और केरोसिन ऑयल इज लाइटर, सो इट विल बी कलेक्टेड एट द टॉप। देन व्हाट वी विल डू, वी विल ओपन द स्टॉप कॉक। हम उसको ओपन करेंगे, जिससे क्या होगा, वाटर विल स्टार्ट कमिंग एंड इट विल बी कलेक्टेड इन दिस बीकर। तो जैसे ही वाटर की लेयर कंप्लीट हो जाएगी, हम कॉक को बंद कर देंगे, सो दैट द केरोसिन ऑयल विल रिमेन इन दिस सेपरेटिंग फनल। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, वाटर को सेपरेट कर लेंगे और केरोसिन ऑयल उसके अंदर रह जाएगा। फिर हम एक अलग बीकर लेंगे, फिर से कॉक को ओपन करेंगे और केरोसिन ऑयल को अलग से निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है, इट इज़ यूज्ड फॉर सेपरेटिंग द इमिसिबल लिक्विड्स। और एक डिस्टिलेशन में आपको बताना भूल गई, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर सेपरेटिंग द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ क्रूड पेट्रोलियम। जैसे मैंने आपको बताया था, क्रूड पेट्रोलियम क्या होता है, जिसमें पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, केरोसिन ऑयल, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो ये नॉट केरोसिन ऑयल, बट दिस डिस्टिलेशन विल बी यूज्ड इन द केस फॉर सेपरेटिंग द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द क्रूड पेट्रोलियम। पेट्रोल, डीजल वगैरह को सेपरेट करने के लिए भी ये यूज कर सकते हैं हम इसको, ठीक है। सो इज इट क्लियर? दिस इज अ सेपरेटिंग फनल मेथड बाय विच वी कैन सेपरेट टू इमिसिबल लिक्विड्स। So next is separation of liquids from a mixture of solid and liquid. As we have discussed about separation of solids
फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। बट यहाँ पे हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि सॉलिड को तो हम सेपरेट कर सकते हैं, जैसे हमने सॉल्ट को किया या सैंड को किया, उसी तरह से हम लिक्विड को कैसे सेपरेट करें अगर एक सोल्यूबल मिक्सचर है सॉलिड और वाटर का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट सोल्यूशन, तो सॉल्ट सोल्यूशन इज द मोस्ट कॉमन टाइप वेयर वी आर स्टडीइंग दिस सॉल्ट सोल्यूशन इन विच वी हैव अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। तो इस मेथड, इसके लिए जो मेथड यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। कंडेंसेशन इज व्हाट, जस्ट अपोजिट टू इवेपोरेशन। तो कंडेंसेशन में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर्स इनटू लिक्विड ऑन कूलिंग। इवेपोरेशन में क्या हो रहा था, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर्स ऑन हीटिंग, वहां पे हम हीटिंग कर रहे थे जिससे लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा था, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कूलिंग कर रहे हैं जिससे लिक्विड जो है वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो हम इसमें एक एक्टिविटी करेंगे, एक्टिविटी 6 गिवन इन योर बुक, टू सेपरेट वाटर फ्रॉम सॉल्ट सॉल्यूशन। पहले हमने क्या किया था, इवेपोरेशन से सॉल्ट को सेपरेट किया था, वाटर को इवेपोरेट करके। अब हम क्या करेंगे, वाटर को सेपरेट करेंगे सॉल्ट और वाटर का कंडेंसेशन करवा के, ठीक है। तो इसमें एक्चुअली हम इवेपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों को यूज कर रहे हैं। कैसे, वी हैव टेकन अ केटल इन विच वी हैव टेकन अ सॉल्ट सोल्यूशन, और इसको हमने एक स्टैंड के ऊपर इस तरह से सेटअप लगा दिया। देन वी विल हीट इट विद द हेल्प ऑफ अ बंसन बर्नर। तो इसको हम फ्लेम से हीट करेंगे। व्हेन इट विल स्टार्ट हीटिंग वी आर यूजिंग केटल हियर बिकॉज द स्टीम विल कम्स आउट इन अ यू कैन से स्पेसिफिक वे। जैसे कि यहाँ पे क्या होगा, एक कलेक्टेड स्टीम जो है वो एक ही डायरेक्शन से आएगी। अगर आप यहाँ पे बीकर यूज करेंगे तो क्या होगा, स्टीम जो है वो सभी डायरेक्शन से बाहर आएगी, तो वो वाटर जो है वो पूरी तरह से इवेपोरेट होके एनवायरमेंट में, एयर में चला जाएगा। बट हेयर वी वांट टू कलेक्ट द इवेपोरेटेड वाटर, दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग केटल हेयर। तो हमने क्या किया, केटल में सॉल्यूशन ले लिया और उसको हीट किया। आफ्टर हीटिंग इट then the steam will start coming out. Steam will be formed due to conversion of water droplets, the liquid, the water into vapors. evaporation की वजह से steam बनेगी, और steam के बनने से क्या होगा, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पैन लेंगे, ये एक पैन है, और हमने पैन की बैक साइड को जहाँ से स्टीम आ रही है वहां पे रख दिया, ठीक है। थोड़ा इससे दूर रखना है आपको, बिल्कुल उसके ऊपर नहीं रखना है। Then what will happen, the steam which is coming will स्ट्राइक विद द पैन। तो जैसे वो पैन के साथ स्ट्राइक करेगी तो उसको थोड़ा ठंडा होने का टाइम मिल जाएगा। जैसे वो एयर में आएगी, वाटर जो है स्टीम या वाटर वेपर्स एयर में आते ही, अगर वो सीधा एयर में चले जाएंगे तो वो ऊपर चले जाएंगे हाई एटमॉस्फेयर में, बट वी आर कलेक्टिंग इट ओवर द बैक साइड ऑफ द पैन, बॉटम ऑफ द पैन। तो जैसे ही वो इसके साथ स्ट्राइक करेंगे क्या होगा, इनको थोड़ा कूलिंग इफेक्ट मिलेगा, ठंडा होने का टाइम मिलेगा। कूलिंग की वजह से क्या होगा, ये वाटर वेपर सारे इकट्ठे हो जाएंगे, और इकट्ठे होने से ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वाटर ड्रॉपलेट्स में, और फिर वो वाटर ड्रॉपलेट्स क्या करेंगे, हम बीकर में कलेक्ट कर लेंगे। दिस विल बी द वाटर। नॉर्मली जैसे हम घर पे क्या करते हैं, जब भी वाटर बॉईल करते हैं उसको अगर हम किसी प्लेट से कवर कर देते हैं, और आप जब उस प्लेट को उठाते हैं तो उसमें आ जाते हैं ना वाटर ड्रॉपलेट्स, तो वहाँ पे कंडेंसेशन ही होती है। जो स्टीम विच इज कमिंग फ्रॉम द वाटर, इट विल स्ट्राइक विद द बॉटम ऑफ द प्लेट and it will cause the cooling and will cause the condensation by converting the vapors into liquid droplets। और ये liquid droplets फिर हम इसको एक beaker में कलेक्ट कर लेंगे, that will be called as the condensation process। और यहाँ पे क्या है, salt kettle में रह जाएगा और beaker के अंदर जो है हमें water मिल जाएगा, ठीक है। So this is the separation of liquids from a mixture of solid and liquid।